Okay, so we have this concept which is strength of acids and bases, but we are going to do it as per Bronsted-Lowry's concept. Okay, say what actually Bronsted-Lowry's concept says. It says that strength of acid is directly proportional to tendency of acid to donate the proton. Because आपको पता है what is acid as per the Bronsted-Lowry's concept? It is a proton donor. Okay, it's a proton donor. Acid is proton donor. So strength of acid is directly proportional to tendency of acid to donate proton. ठीक है? How easily an acid can donate proton? उसी बात पे डिपेंड करता है एसिड की स्ट्रेंथ. ठीक है कि नहीं, है ना? देख लीजिए बेटा, मान लीजिए आपके पास एक है HCl या यू हैव एन एसिड, लेट अस कंसीडर जनरल एसिड HX. जनरल एसिड आपके पास है HX. ठीक है? Say for example the electronegativity of X is more than the electronegativity of hydrogen. So what will happen? This bond will be delta negative and this one will be delta. Atom is delta negative and this will have delta positive charge. Okay. Now what will be the electronegativity difference? Delta chi, electronegativity difference. It will be the electronegativity of X minus the electronegativity of hydrogen. Okay. अगर यहाँ पर electronegativity difference ज्यादा है, ठीक है कि नहीं? If electronegativity difference is much more, ठीक, तो what will happen? This bond will be polar. This bond will be polar. ठीक है कि नहीं? मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि polarity of HX bond depends on electronegativity difference between atoms. ठीक है? Between bonded atoms, right? Between bonded atoms. ठीक है? डेल्टा काय, इनके बीच में जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी इतना ही ये बॉन्ड ज्यादा पोलर हो जाएगा. ठीक है कि नहीं, है ना? और अगर ये बॉन्ड पोलर होता है, व्हाट विल हैपन? ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर है, इट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स व्हाट? X. इट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स X. ठीक है कि नहीं? यानी यहां पे जो बॉन्ड है ना HX के बीच में, इट विल बी शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स X. ये शिफ्ट होगा कहां की तरफ? X की तरफ ज्यादा. ओके, नाउ दिस इज लाइक दिस. ठीक है? ये बॉन्ड इस तरह से होगा. ठीक है कि नहीं, है ना? और यहां पर क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज. यहां पर क्या आएगा? डेल्टा नेगेटिव चार्ज. ठीक है कि नहीं? जब ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स X, तो इट विल बी इजी टू विड्रॉ अ प्रोटॉन. ठीक है कि नहीं? तो बहुत आसान रहेगा इस बॉन्ड में से प्रोटॉन को बाहर निकालना. ठीक है कि नहीं, है ना? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर तो दूर है, सो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा. ठीक है कि नहीं, है ना? ठीक. सो यू कैन राइट दैट मोर द पोलैरिटी, ठीक, more tendency, it is easy to remove proton. Okay, the whole concept lies in polarity, right? So you can say that कि strength of acid, किसी भी एसिड की जो strength होती है, strength of acid is directly proportional to delta chi, which is directly proportional to polarity. ठीक है कि नहीं? अगर डेल्टा का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो मतलब बॉन्ड शिफ्ट होगा टुवर्ड्स X मोर. सो बहुत आसान रहेगा इस एसिड में से प्रोटॉन को बाहर निकालना. ठीक है कि नहीं, है ना? ठीक. इस एसिड में से प्रोटॉन को बाहर निकालना इजी रहेगा. ठीक. तो किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है असल में इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर. ठीक है? या आप कह सकते हो किस पे? पोलैरिटी पे. ठीक है कि नहीं, है ना? ठीक. मोर द पोलैरिटी, more is electronegativity difference. ठीक है? If more electronegativity difference is there, more stronger is the acid. Okay? So सबसे इजी बात कि strength of acid जो है वो डिपेंड करती है असल में किस पे? पोलैरिटी पर. वो असल में डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर. Okay? This is the first point as per what Bronsted-Lowry concept. ठीक है कि नहीं, है ना? अब जरा इस तरह से बात को समझो. ठीक है? You may understand it like this way. Let's go to an example. We have like this NH. Okay, we will say like this. We have HCl and we have this. This is what we call as HCl, and this is, okay, we have H2S. Okay, say which is stronger acid, right? Which is stronger? देखो हाइड्रोजन तो दोनों जगह पर है. ठीक है? लेकिन आपको पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे? सल्फर से. तो यहाँ पर क्या होगा? दिस बॉन्ड विल बी मोर पोलर as compared to this bond. So HCl is a stronger acid. Okay, ठीक है? HCl is a stronger acid. Why? क्योंकि क्लोरीन की पोलैरिटी
ज्यादा है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है कि नहीं, है ना। सो इट एक्चुअली होली एंड सोली डिपेंड्स ऑन व्हाट, द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, ओके कि नहीं, है ना। पोलैरिटी ज्यादा होगी बॉन्ड्स की तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, लेस पोलैरिटी मींस लेस स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड, ओके है कि नहीं। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स निकलते हैं, वो आपको याद रखने हैं। फॉर एलिमेंट्स ऑफ सेम पीरियड, you remember if we have elements which belong to the same period, अगर हमारे पास एलिमेंट्स होंगे जो बिलोंग करेंगे क्या, सेम पीरियड को, जो एक ही पीरियड के एलिमेंट्स होंगे और वो एसिड बना रहे होंगे, वो क्या बना रहे होंगे, एसिड्स, और आपको पता करना है एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। तो आप क्या कहोगे, से फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, CH4 इज दियर, ठीक है, NH3 इज दियर, ओके, NH3, देन वी हैव H2O, देन HF, ये 4 है। बताइए जरा कॉमन सेंस से बताइए, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, दे बिलोंग टू द सेम पीरियड, है कि नहीं, इन्होंने एसिड बनाया है, ठीक है। अब कौन सा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गर होगा, कौन सा एसिड जो है सबसे स्ट्रॉन्गर होगा, देखिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन, कार्बन इज वीक इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओके। तो अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है तो स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा, यही होगा ना, ठीक है, इज दैट क्लियर, ठीक है। दोस्तों फॉर एलिमेंट्स ऑफ सेम पीरियड एसिडिक स्ट्रेंथ किस चीज पे डिपेंड करती है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, is directly proportional to polarity of molecule, okay, more the polarity या directly proportional to delta chi, ठीक है कि नहीं। देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के पास है, ठीक है, तो फ्लोरीन इज द मोस्ट एसिडिक एसिड अमंग दीज, है ना, उसके बाद वाटर, उसके बाद NH3 एंड उसके बाद मीथेन, राइट, ठीक है। अब हम देखेंगे फॉर एलिमेंट्स ऑफ सेम, फॉर एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके पास एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, एक ही ग्रुप के, ठीक है, जैसे यू हैव क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ओके, ये एसिड्स बना रहे हैं, HCl, HF, HBr, HI, ओके, इस तरह से आपके पास है, ठीक है। लेट मी राइट इट इन प्रॉपर ऑर्डर, इट इज फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, ओके, ये है, तो ये एक ही ग्रुप के हैं, है ना, ठीक। अगर इस हिसाब से देखा जाए, ठीक है, बताइए विच वन इज द स्ट्रॉन्गर एसिड, अगर इस हिसाब से देखा जाए, जैसे हमने रूल पढ़ा, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, तो सबसे स्ट्रॉन्गर कौन सा होना चाहिए, HF, ठीक है कि नहीं, मतलब आप इस तरह से कहोगे, दिस शुड बी द ऑर्डर, इट इज एक्सपेक्टेड ऑर्डर, है कि नहीं, ऐसा आप सोचते हो ऐसा वाला ऑर्डर होना चाहिए, है कि नहीं, लेकिन एक्चुअल ऑर्डर ये है ही नहीं, एक्चुअल ऑर्डर बिल्कुल इसका उल्टा है, यहां पे आप गलत कर देते हो, एक्चुअल ऑर्डर इज डिफरेंट। यू विल से सर रिवर्स क्यों हो रहा है, यहां पे हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड माना जा रहा है और सबसे वीक माना जा रहा है HF। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, थिंग्स आर क्वाइट सिंपल, देखो क्या होता है, फ्लोरीन इज अ स्मॉलर एटम, ओके, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस वन इज फ्लोरीन, राइट, chlorine is bigger atom than fluorine, okay, bromine is more bigger atom and iodine is the most biggest atom among them, okay। तो जैसे जैसे एटम बड़ा होता है बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, पढ़ा है ना आपने बॉन्डिंग में, जैसे जैसे एटम बड़ा होता है बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो इन चारों में से सबसे वीक बॉन्ड कौन सा है, HI वाला, तो सबसे इजी कहां से होगा प्रोटॉन को निकालना, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। सो आप हमेशा याद रखेंगे कि जब हम इस तरह से देखते हैं, इट इज बिकॉज एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ बॉन्डेड एटम्स, ओके। आप कहेंगे सर पोलैरिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप डाउन द ग्रुप देखोगे, एक किसी ग्रुप में देखोगे, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, साइज ऑफ द एटम्स डिसाइड द व्हाट, एसिडिक स्ट्रेंथ, साइज ऑफ एटम्स डिसाइड एसिडिक स्ट्रेंथ। लेकिन अगर आप किसी पीरियड में जाओगे ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिसाइड इज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, राइट, इज दैट क्लियर, ओके, ओके। नाउ मूविंग टू अनदर पॉइंट, सेकंड पॉइंट,
As per this concept, we have second point, which states like this. Say for example, we have a reaction जिसमें acid is combining with water to produce protons. Okay. Say for example, we have an acid HCl. We are taking the example of HCl. It is combining with water, and it produces H3O positive and some Cl negative. Okay. And this reaction follows the equilibrium like this way. ठीक है. आप पता कर सकते हो whether the forward reaction is favorable or backward reaction is favorable. किस रिएक्शन की स्पीड ज्यादा है, कौन सी रिएक्शन फेवर हो रही है. से फॉर एग्जांपल अगर आपको पता चला कि फॉरवर्ड रिएक्शन फेवरेबल है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, HCl डिसोसिएट होके बना रहा है H पॉजिटिव. तो इसका मतलब है एसिड स्ट्रॉन्ग है, तगड़ा वाला एसिड है. क्यों? क्योंकि ब्रेक हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, तो डिसोसिएट होके H3O पॉजिटिव बना रहा है. ठीक है कि नहीं, है ना. ठीक. अब अगर यहां पे आप कहोगे कि सर फॉर एग्जांपल बैकवर्ड रिएक्शन फेवर हो रही है, इसका मतलब यह है कि H3O पॉजिटिव वापस कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, HCl में. इसका मतलब है HCl इज अ वीक एसिड. ठीक है कि नहीं, है ना. ठीक. सो यू हैव टू रिमेंबर, इफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड, if forward reaction is favored, ठीक है, which means acid dissociates to produce more H positives, so acid is stronger, otherwise weak. Is that clear? ठीक है कि नहीं. अब देखिए HCl के बारे में आपको पता है, HCl अगर मैं बताऊं तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. यू नो HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. कंबाइन होता है वाटर के साथ, तो फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर होता है, H3O पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव कंबाइन बनता है. ठीक है कि नहीं, है ना. तो यहां पे क्या होता है, इट डिसोसिएट्स टू प्रोड्यूस प्रोटॉन, इट प्रोड्यूसेस प्रोटॉन. ठीक है. तो इस प्रोसेस को फेवर हो रहा है. इट हैज बीन फाउंड दैट कि मोर फेवरेबल इज फॉरवर्ड प्रोसेस. ओके. सो प्रोटॉन यहां पे जनरेट हो रहा है, राइट. अब Cl नेगेटिव के बारे में आपका क्या ख्याल है. Cl नेगेटिव हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन. ओके. इसके पास है टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द, तो ये कंबाइन होकर वापस क्या बनाएगा, बेस. तो इट इज अ कंजुगेट बेस, इट इज अ कंजुगेट. लेकिन यहां पे बैकवर्ड रिएक्शन की जो फेवरेबल कंडीशन है वो नहीं है, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन फेवर नहीं हो रही. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इट इज अ वीक कंजुगेट बेस, है कि नहीं. क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ये कंबाइन नहीं होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा. इट हैज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन बट नॉट सो मच, बिकॉज बैकवर्ड रिएक्शन मत हो रही है उतनी स्पीड से. समझ आ रही है बात. तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन इसकी जो कंजुगेट बेस है वो क्या है, वीक है. ठीक है. यू विल ऑलवेज सी दिस, आप हमेशा देखोगे हर किसी प्रोसेस में कि एवरी स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कंजुगेट बेस. ठीक है. एंड वाइस वर्सा. ओके. सिमिलरली आप देखोगे एवरी स्ट्रॉन्ग बेस हैज वीक conjugate acid and vice versa. ठीक है कि नहीं. तो मतलब क्या है, आपको बस चेक करना है. अगर आपको चेक करना है दो एसिड्स की स्ट्रेंथ कि कौन सा वाला स्ट्रॉन्ग है, तो आप क्या करोगे, उनकी कंजुगेट बेसिस को चेक करोगे. ठीक है कि नहीं. उनकी कंजुगेट बेसिस को क्या करोगे, चेक करोगे. ओके. लेट मी से एन एग्जांपल. यू हैव CH3COOH. ओके. इट्स एन एसिड. इसको वाटर में डालोगे तो व्हाट यू विल गेट, CH3CO नेगेटिव देन H3O पॉजिटिव. से यहां पे H था, अब यहां पे नहीं है. ठीक है. तो इट इज एन एसिड, राइट. ठीक. लेकिन अब इस तरह से देखोगे, दिस हैज अ टेंडेंसी टू कंबाइन बैक टू प्रोड्यूस दिस वन. ओके. सो देयरफॉर इट इज अ कंजुगेट. लास्ट लेक्चर में बताया था कंजुगेट बेस है. लेकिन ये एसिड चूंकि वीक है, ठीक है, इसकी कंजुगेट बेस क्या होगी, फिर स्ट्रॉन्ग होगी. ठीक है कि नहीं. एवरी वीक एसिड has a strong conjugate base and every strong acid has a weak conjugate base. ठीक है कि नहीं, है ना.
ओके, एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन आई विल बी शेयरिंग ए पेज विद यू जिसमें लिखा होगा कि कौन से एसिड्स है और इनकी कंजुगेट बेसिस वगैरह क्या है, ठीक है कि नहीं, है ना, सो दैट यू मे बी इजी, इट मे बी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई कि कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है, ठीक है कि नहीं, है ना। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखोगे, ठीक है, कि जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी वीक बेस होगी, ठीक है कि नहीं, मतलब एसिड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है किस पे, बेस की वीकनेस पर, कंजुगेट बेस की वीकनेस पर। अगर कंजुगेट बेस बहुत ज्यादा वीक है इसका मतलब है हमारा जो एसिड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक, इज दैट क्लियर, समझ आ रही है बात। तो मैं कह रहा हूं कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो है ना, किसी भी स्ट्रेंथ की एसिड की स्ट्रेंथ वो डिपेंड करती है किस चीज पे, बेस की वीकनेस पर, ठीक है कि नहीं, इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीकनेस ऑफ कंजुगेट बेस, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक, इज दैट क्लियर। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, एंड दिस इज सेकंड पॉइंट, ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, ओके, some things are beyond the scope of your textbook right now, ठीक है, so असल में तो टॉपिक यही पे एंड होता है, बट आई विल बी शेयरिंग सम इंफॉर्मेशन विद यू विच इज इंपॉर्टेंट, ओके। इफ यू आर गिवन 4 एसिड्स, बिकॉज ये फेमस एग्जांपल है, बहुत बार आज तक पूछी गई है, तो आपके पास इस तरह से HClO4, HClO3, HClO2, देन यू हैव HClO, ओके, बताइए, बहुत बार आज तक नीट में, जेई में या बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एग्जांपल आई है, बताते हैं कि बताइए इसकी स्ट्रेंथ क्या है, विच इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, ओके, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, से हाइड्रोजन। आप क्या करते हैं, पहले जब भी आपको एसिड की स्ट्रेंथ चेक करनी है आप पोलैरिटी चेक करते हो, ठीक है, देखते हो किस वाले एटम की पोलैरिटी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे तो हर कोई एटम एक जैसा है, एवरीवन इज सेम, isn't that, chlorine is everywhere, oxygen is everywhere, hydrogen is everywhere, so on that basis आपने पता लगा सकते whether it is a strong acid or which one is strong and which one is weak, ठीक है कि नहीं, ओके, आप चेक करोगे साइज, but all of them have same size, okay, second point fails, so what to do in such a cases, acidic strength is directly proportional to percentage of oxygen character, percentage of oxygen, which has most percentage of oxygen, O4, this has most, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन यहाँ पे, ठीक है, तो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, ओके, राइट, ठीक है, चलिए मुझे बताइए इसमें, ओके, तो बताइए बेटा, लेट मी रिप्लेस इट बाय आयोडाइड, ओके, इट विल बी इजी, बताइए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, इस बार सारे एटम सेम नहीं है, अलग अलग है, ओके, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज सेम एवरीवेयर, isn't that, and then what, electronegativity, okay, as per electronegativity which one is stronger than chlorine, okay, ठीक है, it's chlorine which is stronger, okay, this is now tell me one thing, which among them is stronger, CCl3, then it is COOH, then there is CHCl2, COOH, then there is CH2, COOH, then there is CH3, then is chlorine, CH3, COOH, okay, which is the most strongest, से आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे, पोलैरिटी, सब में सेम ही है, सब में क्लोरीन है, सब में हाइड्रोजन है, सब में ऑक्सीजन है, ठीक है, सेम है, कार्बन है, ठीक है। अब बताइए दूसरी बात आप चेक करते हैं साइज, लेकिन सब जगह पर एटम्स एक जैसे हैं, ठीक है। तीसरी बात आप चेक करते हैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, वो भी सब जगह पर सेम ही है, ठीक है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, आप देखोगे यहाँ पे 3 क्लोरीन एटम्स अटैच है, तो पोलैरिटी विल बी मोर, है कि नहीं। सोचो यार, एक कार्बन 3 क्लोरीन खींच रहे हैं साइड से, पोलैरिटी ज्यादा होगी ना, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 ही क्लोरीन है, पोलैरिटी लेस होगी, यहाँ पे 1 ही क्लोरीन है, पोलैरिटी और कम होगी, यहाँ पे तो कोई नहीं है, पोलैरिटी कम होगी, तो पोलैरिटी सबसे ज्यादा कहाँ होगी, पहले वाले केस में ज्यादा होगी, तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, we'll be discussing, we'll take a separate lecture on strength of acids and bases, जिसमें हम खाली एग्जांपल्स वगैरह डिस्कस करेंगे, ठीक है, या प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन आए हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके,
So in this lecture, it is now finished. Okay.